बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मैं हल्का एन 129 में मौजूद हूं। यहां से मियां अज़हर इलेक्शन जीते थे। आपके इल्म में होगा कि चंद रोज़ पहले उनकी वफ़ात हुई। अब 18 सितंबर को यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। हल्का एन 129 को तो एक प्रोग्राम में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में इस हल्के को कवर करूँ ताकि आपको अवामी राय से आगाह कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वोट किदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई दा वोट है, इमरान खान दा पक्का वोट है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਸਵੀਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਸਾਬਤ ਕਰਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤਸਵੀਰ? ਆਓ ਸਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਲੋ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਅਦਰ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਕੂੜਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਦਿਖਾਓ। ਸਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੂੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਧਰ? ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਖਲੋਵੋ ਸਰ 10 ਮਿੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹ ਤੋੜ ਟਿਕਟ ਪਹਾੜਾਂ ਬੜੇ ਵੇਖੋ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ? ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਏਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ? ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਘਟਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 70,000। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸਰ? ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। 70,379। ਆਏ ਘਰ ਕੋ 10 ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ। 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ? ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ IMF ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਤਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫਨ। ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਫਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਪੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਜਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਬੰਨੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਔਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਓ।
ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਈਦ ਦੇ ਛਾਪੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀਕਅਪ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਦੀ ਹਰ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵਣ, ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਜਾਵਣ, ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੈਦੀ 804 ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ये उन्होंने अपने पैसे से लगाई है, वो हमने अपनी मर्जी से लगाई है तस्वीरें। नहीं, ये अवाम ने जो इनसे मोहब्बत करती है उन्होंने लगाई है। अच्छा, ये हम इनसे मोहब्बत करते हैं खान साहब से, हमने खुद लगाई है खान साहब। व्यूअर से कहा जाता है जी सीएम साहब हर जगह अपनी तस्वीर लगा रही हैं। अब अगर ये गाड़ी पे तस्वीर लग गई है तो गाड़ी आपको कह रहे थे लगी ही नहीं है? आप तो कह रहे लगी नहीं। चलो अगर लग गई है तो गाड़ी आपका मोहल्ला साफ करने आती है, महल्ले का खाना खराब करने आई है। नहीं वेखो उन्होंने सफाई तो करा रहे हैं ना, सफाई करा रहे, अंदर जमा हो रहा कूड़ा, सफाई नहीं करा रहे, अंदर जमा हो रहा कूड़ा सर, अंदर जमा हो मसला की है इस इलाके तो दसो ना। मसला वो सारे बच्चे बीमार हो गए ने, यह मसला है। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ। ਆਹ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਧਰਕੀ ਨੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਡਸ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਥੱਲੇ एक्सीडेंट ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। एक एक्सीडेंट के इधर लड़का मर गया, उसके ऊपर से ट्रक को गुजार दिया इन्होंने 5 मिनट बाद। साफ सुथरा पंजाब है, साफ सुथरा पंजाब है की हुकूमत में। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीटीआई की हुकूमत में हमने इधर बैठकर सारा काम किया। ये बंद हो गया था, ये मियां असलम इकबाल साहब ने इसको कॉलेज में मंजूर किया था, इन्होंने फिर रिश्वत खाई है। ठीक है, इनको कूड़े वाले को इधर लाकर बैठा दिया, वो बंद रोड पर चला गया। चलो सीएम ने एक सेकंड, बात ये ठीक है, मैंने तो मान लिया कि ये शहर के बीच में इस वक्त इन्होंने कूड़े करकट का एक मैदान बना दिया। महंगाई में तो नून लीग कमी लाई है ना, बहुत ज्यादा लेकर आई है, बहुत ज्यादा लेकर आई है। हम सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ये कह रहे हो अब महंगाई में कमी आ गई। बुरा ना मानेगा, झूठ ना बोले, भूख नहीं। क्यों बुरा मानूं? नहीं, सारे लोग भूखे मर रहे हैं इधर। क्या उसने आटा 2 रुपए किलो कर दिया, 10 रुपए किलो कर दिया, पेट्रोल के 50 रुपए लीटर हो गया, दही 10 रुपए किलो हो गई है, दूध क्या 30 रुपए किलो हो गया। ये महंगाई की है, और डेली भैया 50 रुपए की महंगाई की है उसने, ये हमारा फायदा वाम का किया। NA 129 का हूँ इलेक्शन आ रहे ना, ठीक है, हूँ इन्होंने कहा नहीं जी इनू 10 दिन से चलो बंद कर भी देंगे, साढ़े को वोट लेना ना इन्होंने। ठीक है, साढ़े को वोट लेना है, होर कितों वोट लेना? असी वोट देने वाले बंदे हाँ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣੇ, 100 ਰੁਪਏ ਚ 90% ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਦੇ, 90 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ, 90 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਟੈਕਸ? ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਟੈक्स चला जाता। वो जो गरीब बेचारे मार्केटों में अंदर अड्डे लगा कर बैठे, उनको भी पीटीआई को वोट क्यों देना है? पीटीआई को वोट क्यों देना? हमारा है पीटीआई का वोट, ताकि मुल्क पीछे चले जाए। मुझे पता है, मुझे भी उन्होंने उठा लेना, अब तो पक्का उठा लेना ना। नहीं नहीं उठाना नहीं, वो छोड़ो सही, ये तो छोटा सा काम हमारा 5 तारीख को आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने अब लिस्टें जारी कर दी। पीटीआई को वोट डालेंगे आप फिर पीछे चले जाएंगे। और सर पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रात को 2 बजे भी किसी ने कहा ना ये काम है, तो हमने खुद मैंने करवाया है। खुदा की कसम, इस इलाके में ये सारा काम जवेद गुजर हो गया, मैं हो गया, ये सारे भाई मोहल्ले के, इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर सारा ये सारा क्रिकेट कूड़ा था, हर चीज़ खत्म करवा कर हम इधर बैठ के ताला लगा दिया, धरना दिया था। ये हमारे ये मौजूद हाजी साहब है, हाजी साहब दसो तुसी हाजी साहब इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? मैं कह जलालत है बहुत बड़ी, इन्नी को बदबू तो बीमारी हार जान नहीं छड़ रहा साडी इस इलाके 'ਚ। इस इलाके च इन्नी को बदबू है कि साह लेना औखा होया। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ सीएम ਤੇ ਕੰਮ दिन रात करा रही है। पता नहीं कितने करा रही, सानू तो समझ नहीं आ रही। सानू इथों गुजरिया नहीं जाता, कुड़िया रक्षा ना रस्ता बुला के इथों गुजर तो परेशान असू, जेडी साढ़े नाल 3 घंटे 3 घंटे से लगे फिरने हैं सर। चाचा महंगाई तो घटाई है ना हुकूमत ने, महंगाई तो घटाई है ना सर, सारा कुछ घटदा, केड़ा चीज नहीं घट अल्लाह जो जिंदे वास्ते घट रही होते नहीं घट रही है। हुण ना चीनी लाभदी पई है, चीनी मिल रही है किसी दुकान ये अच्छा बहुत सस्ती है, महंगाई हो गई बहुत घटदी भी है। सिर्फ लेक्चर निजाम चल रहे हैं, लेकिन थल्ले वाला तबका जो ना मर गया। ये तस्वीर लगी है इस गाड़ी पे, आप तस्वीर को क्या करना?
ये तस्वीर हौसला नहीं बढ़ाती आपका? कैमरामैन साहब हमने दिखाएं। इस हौसलों को क्या करना, हम यहाँ पे तंग हो रहे हैं, कूड़े की बोझ से इतने तंग है, उसको क्या करें? आप बात कर रहे हैं मरियम नवाज की, मरियम नवाज को नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कूड़ा डिपो बना के हमारे लिए साहब बना दिया हुआ है इन्होंने। नहीं, जब ये यहाँ से कूड़ा जा रहा है तो आपको इसमें खुशी नहीं होनी चाहिए? भाई जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है अभी देना। आप सुबह रश्के लेने लगी होती हैं, आके यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा फेंक के यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। अंदर पहाड़ बने हुए हैं, कोई बताएं आप, आपको नजर तो आ रहा होगा। वोट किसका इस दफा? किसका? वोट किसको दोगे? मैं किसी को भी नहीं दूंगा। आप किसी को भी नहीं नहीं दोगे? दूंगा, सब बात है, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट किस लिए दें? ये कूड़ा हमें कूड़े का गिफ्ट देने के लिए, ये कूड़े का हमें गिफ्ट मिला हुआ है। ये कौन सा इलाका, जरा नाम बताएं। 129। हाँ, मियां अजहर साहब का हल्का। मियां अजहर साहब का हल्का है, मियां नुमान का भी हल्का लगता है, राना मशहूर का हल्का लगता है, मैं इश्तियाक का हल्का लगता है। तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं गए कभी हुकूमत कोल? सारा कुछ हर बंदे को गए हैं, मियां नुमान को गए हैं, हर इतने डीसी साहब को गए हैं, टाउन हाल गए हैं, आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई। देखो तो सही, यहाँ पे आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, तो हमारा भी तो हौसला, हमारा घर सामने है। आपकी राय मैं समझता हूँ। व्यूअर्स, अब इशू ये पड़ गया कि अहले इलाका कहते हैं कि यहाँ ये कूड़ा करकट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएं, पीछे देखो तो सही, पहाड़ सारी पहाड़ बने हुए हैं। आबादी है, गली मोहल्ले हैं और लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो अल्टीमेटली इसका इम्पेक्ट ये आएगा कि बदबू आएगी, बेटियों की लोगों ने शादियाँ करनी हैं। लोग आते नहीं है, वो डरते आते नहीं है, वो कहते यहाँ पे हम शादी करें भाई, यहाँ वो खाने में जिसको शादी का बोले ना अपनी बेटी के लिए कि रिश्ता लेने के लिए, वो कहते हैं हमें यहाँ पे रिश्ता करना ही नहीं है, हम मजबूर हुए हैं। किसको जाए बोले, कोई बात सुनने वाला हो तो हम सुनाए ना किसी को। सर, मियां अजहर साहब की वफ़ात के बाद इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, NA 129 में मैं मौजूद हूँ। अच्छा, तो आपका इस दफ़ा वोट किसके लिए होगा? जमात इस्लामी के लिए। जमात इस्लामी के लिए क्यों? इसलिए कि चलो कुछ ना कुछ तो, नहीं तो जमात को तो दे रहे हैं, इस्लाम को तो वोट डाल रहे हैं। उन्होंने आज तक इस्लाम के लिए क्या किया? कुछ वैसे नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, जहाँ भी कोई आफत या कोई मुसीबत आती है तो जमात सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। और ये नहीं कि इनके तमाशा देखते रहे कि हेलीकॉप्टर आएंगे तो लोगों को बचाएंगे, जो पानी में बह गए लोग दबा हो गए सब। सर, वहाँ तो सबसे पहले आप ही पहुँचती हैं, अब जहाँ मसाइल हों। तो आप ही कौन? CM साहिबा। वो कौन है? मियां मरियम नवाज शरीफ साहिबा। शहजादी है वो तो हमारी, वही ना, वो तो हर जगह पहुँच जाती है यार, उसकी क्या नहीं बात तो कर फिर रहे हैं? वोट उनको देना नहीं बनता। अरे वो तो खजादी है हमारी, हद हो गई यार, उसकी ना बात करें यार, प्रिंसेस है वो, जहाँ दिल जाए आए, जहाँ दिल चाहे जाए। ठीक है, लेकिन आपका वोट फिर उनके लिए नहीं जो हमारी शहजादी हैं, बेटी हैं? नहीं, उनसे प्यार है, मोहब्बत है, बस बेटी है हमारी, बेटी है ना, बस। तो वोट क्यों नहीं फिर बेटी के वोट लिए? इसलिए नहीं देना चाहते उसको कि वो वोट के काबिल नहीं है, बाकी प्यार है। शहजादी है, बेटी है, वोट के काबिल नहीं है। तो प्यार है ना, औलाद है ना, हाँ हाँ, तो उसको क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है ना, औलाद को, नलायक औलाद को भी तो बर्दाश्त करना पड़ता है, तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहे, आबाद रहे, हम भी खुश हैं। छीने जाए रोटी, तोड़े जाए तंदूर, फाड़े जाए लोगों की कमीज़ें, कपड़े उतार ले लोगों के, खुदकुशियाँ हो रही हैं, रोटी नहीं मिल रही, तो हम मज़े में, हाँ हाँ, बस दुकानें टूट रही हैं, मार्केटें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के कारोबार ही नहीं है, खाने पीने के देखे दुकानें, सुनसान दुकानें पड़ी हैं। ये देखे तो खाने का तंदूर है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये तंदूर यहाँ था, मुझे बताइए उसे क्या तकलीफ दे रहे थे, वो वहाँ अंदर घुसेड़ दिया उन्हें, गर्मी में मरो जाकर। सर, माँ घर की सफाई करती है, बेटी घर की सफाई करती कि नहीं करती? हाँ हाँ, जमादारों के काम तो सारे करते हैं, जमादारों के काम है सर, ये थोड़ी है कि जमादारों के काम हो रहे हैं, ये तो आवाज़दारों के काम हो रहे हैं भैया, आवाज़दार हो रहे हैं, सारी दुनिया आवाज़दार हो रही है। कोई बंदा भी है जब कोई खुश नहीं है कि हाँ मरियम ने कोई अच्छा काम कर रही है, हर किसी की रोज़ी छीन रही है, बस ये कर रही है, दुनिया परेशान है। क्या आप इस बात पे उनके मशकूर ना हो कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से अपने आप को इस सूबे और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया? नहीं नहीं, इसके तो बड़े मशहूर हैं, वो तो जितने नोट जाए इधर से छाप ले, हाथ मारे, इधर से छाले आप ले, और बल्ले ही बल्ले, मोजा ही मोजा, काम तरक्याती हो रहे हैं, खाना पीना अपना हो रहा है, पेट हजम, बस लकड़ हजम, पेट हजम, गरीब मरता है, मर जाए उसकी बला से। आपने कहा लोगों के कपड़े उतार रहे हैं, उतरे हुए हैं? उतरे हुए लोग। बुरा ना मानिएगा, एक बात कहूँ, क्या मैंने आपने पाकिस्तान बचाने के लिए कपड़े बेचने की बात की, लेकिन मियां शहबाज साहब ने किया ना? हाँ, तो नहीं, किया तो उन्होंने उन्होंने बेचे। कहा मैं अपने कपड़े बेचूंगा। उन्होंने बेचने के बजाय उन्होंने लोगों के बेचे, लोगों के उतरवा दिए। वाह, लो उतर कपड़े उतार लिए,
अब बताओ, ये बिजली का बिल आया हुआ 27,000 रुपये का, बताइए। सर आप बिजली कम इस्तेमाल हजरत करें हम ना। करते ही नहीं, हम इसलिए बिल हम कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को पैसे दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का बिल आला गवर्नमेंट को दे दो बस। कारोबारी नहीं छोड़ा, करेंगे तो खाएंगे। चलो चल तो रहे ना। कारोबारी नहीं। इधर है एक सेकंड। आपके पास ये अल्लाह ताला ने सुनहरी मौका नहीं दिया कि इस हल्के से इस दफा फिर आप नून लीग को खिदमत का मौका दें। चलो जी, वो तो चलो खिदमत का मौका उनको देते हैं, हमारे लिए तो नून लीग करे ना। हाँ, हमारे ये बात है ना, कारोबार तो बढ़ाए ना, गरीब आदमी को रोटी तो मिले, गरीब आदमी को रोटी का मिले। चले आप ये बात वापस ले लें कि उन्होंने हमारे कपड़े उतार दिए या हमें उन्होंने तंग किया। मैं कहता हूँ हजरत कोई ऐसी बात करें लोगों का हौसला बढ़े। अच्छा, ये कहें कि उसने बहुत शुक्रिया उसका, उसने हमारे सर पे जो बनियान है वो बाकी रह गया, कपड़े उतर गए हैं, बाकी तो कुछ नहीं रह गया। अब लंगोटी और रह गई है बांधनी, वो भी बांध लेंगे भाई, उनका बहुत शुक्रिया। तो फिर राजा मैदान में दम दबा दम मस्त कलंदर दम दबा दम मस्त कलंदर है जी। और मरियम नवाज जिंदाबाद, और शहबाज शरीफ वो हमेशा आबाद, और जरदारी हमेशा बर्बाद। ठीक अब हो गया तो काम फिर खत्म। वोट किसका हुआ है? वोट मरियम नवाज को ही हो गया फिर इस बात में मरियम नवाज को लंगोटी जो बांधनी है। आजा भाई मैदान में आ गए, समझा ही बात की आपको। तो आप भटक गए थे, इसका मतलब आप राह रास्त पे आ गए। नहीं, हमारी शहजादी है, बेटी है हमारी, है ऐसी क्या बात है। हमारी बहन है, भटक सकते हैं, भटक नहीं भटक सकते, कभी भी नहीं भटक सकते। वोट नवाज शरीफ को देंगे नवाज बस। शरीफ अब खुश आप। इस वक्त मैं पक्की ठट्टी यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। इनसे हम ये भी पूछेंगे कि वोट किसको डालेंगे इस दफ़ा और आपके इलाके के मसाइल क्या हैं। इसके साथ साथ जो नून लीग ने पाकिस्तान से महंगाई का, या मौजूदा हुकूमत जो दावा करी हमने महंगाई का खात्मा कर दिया, उस पर ये उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे या नहीं। ਪਾਣੀ ਕਰੋਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਪਰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ। ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਰੀਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਰੀ ਵੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਐਸਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਸਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਐਡੀ ਪੇਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਸੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਘੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। किदा माँ जी 2 ਵਾਰੀ ਟੂਅਲ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਘੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰੇਗੀ ਇਸ। नहीं 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 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਾਰਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਈ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰੀਦਾ ਵਕਤ करीदा। ठीक है। अच्छा सर, मेरे लिए जो ताजुब की बात है कि आप लोगों का कहना है हम नून लीग के वोटर हैं लेकिन मियां असलम इकबाल ने काम करा देना था, ये मेरे लिए बड़े ताजुब की बात है। सर वो इसलिए कि उसने यहाँ पे काम करके दिखाया है, यानी ऐसे काम उन्हें किया है, हर एक को नजर आया है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ اخلاق ਪਿਆਰ। तो मैं इश्तियाक साहब भी सुने बड़ा प्यार करते ने। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਛੱਡੋ ਬਸ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋਗੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਬਸ, ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਗਏ ਮੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਿਖੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਗਏ, ਨਾਲ। ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਭਟਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। हाँ जी। 3 महीने हो गए हैं, सारा काम सारे बोर्ड छोड़ दें। 3 महीने हो गए, कोई मसला हल हुआ है? लोगों को बिल भी आ रहे हैं बिजली पानी के। सर नया एमएनए आएगा तो मसला हल होगा ना। अच्छा, तो तब तक मर जाए लोग, तब लोग मर जाए, वो तब आएगा, वो तब की बात है ना। अब ये 3 महीने जो हो गए, 3 महीने से ज्यादा ये असर हो गया है। ये जो लोग मर रहे हैं पानी के लिए, उनका कौन जिम्मेदार है? अब इस वक्त ये इलाका जो है ना बगैर एमएनए के है, जी, जी, ठीक है जी। अब इस वक्त मुझे ये महसूस होता, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। आप वोट जिस मर्जी को दें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप हाफिज नुमान साहब या मैर इश्तियाक साहब इनके लश्कर में शामिल होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब का सिपाही बनकर, एक अच्छे शहरी बन के, महजब शहरी बन के जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और उनको मुंतखब करवाएंगे तो इंशाल्लाह तो ये फिर लगेगा। मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं नहीं इस चीज को मानता। 3 महीने हो गए हैं, लोग इतने से बच्चे बोतलें उठा के जगह जगह पे जाके पानी इकट्ठा कर रहे हैं, उसका कोई नहीं देखने वाला। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से आपको ज्यादा नहीं हो लगता गए। इस मुश्किल वक्त में आपको हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए बजाय इसके अपने हल्के के मसाइल उठा लें? अच्छा, हुकूमत के साथ खड़े हो, हुकूमत अवाम के साथ ना खड़ी हो। उनको मुंतखब तो करवाएं। कौन मुंतखब करे? आप करवाएं। अच्छा, अब हम करवाएं तो बाद में वो गायब हो जाए, फिर ये पैप यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। 3 महीने हो गए, बात इस वक्त पानी की हो रही है। हुकूमत को छोड़ दें, बात इस वक्त ये बात छोड़ दें। बात इस वक्त ये हो रही है कि ये मसला हल होना चाहिए ट्यूबवेल का। 3 महीने हो गए, ये पानी लोगों को घरों में नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे आप ये बताएं, उसका मसला हल तो करवाएं ना। चले इसके साथ साथ बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई, किचन सस्ता हुआ, आज पेट्रोल महंगा हो गया, आज पेट्रोल महंगा हो गया। नहीं वो सस्ता हो रहा है। कैसे सस्ता होगा? जो चीज ऊपर चलेगी वो नीचे नहीं आएगी। 10 रुपए ऊपर कर दिए, 1 रुपया नीचे फेंक दिया, बस ये है हुकूमत। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਆਣ ਡਿਆ ਵੇ, 40,000 ਰੁਪਏ ਆਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕੱਟਾਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਫਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਫਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਫਾ? ਐਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। सर जी पानी का इस वक्त हमारे इलाके में इतना मसला बना हुआ है ना कि हम जो है ना हमें सुबह से शाम तक एक ही फिक्र है कि पानी जो है ना कैसे पूरा करना है, कैसे हमने जो है ना घर के मामलात पानी के साथ हल करने हैं। उसके अलावा बाकी बात तो आप छोड़ ही देना। और ये बड़ी ईद की चांद रात का जो है ना हमारा ट्यूबवेल ख़राब हुआ है, ठीक है, तो अब तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। ये वज़ीर आला पंजाब क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो आपकी माँ की तरह, वो आपसे मोहब्बत करती हैं, खाली आप थोड़ी उनकी जिम्मेदारी। तकलीफ होनी चाहिए ना, माँ को तो तकलीफ होनी चाहिए ना कि आम की मेरे बच्चों को तकलीफ है। को सपोर्ट किया हमने, मुझे पता है और अब भी आप करेंगे। तो हमारे साथ जो है ना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मगर हमारे साथ गैरों जैसा सलूक हो रहा है। कोई ऊपर MNA MP अल्लाह ना करे आप भूखे प्यास से दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन नून लीग का साथ नहीं छोड़ना। नहीं जी, वो तो फिर चलता रहेगा, जाहिर है। तो नहीं, मोहब्बतों में देखें, अगर उनके एंड पे कोई खुदा न खास्ता कमी हो जाती है और हम प्यास से दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन जो हमारा नजरिया हमने उस पे उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा ना। अगर भूखा प्यासा जो जाएगा यहाँ से, उनका हिसाब हुक्मरान को देना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा। देखिए ना, इसको अब 3 माह हो गया टोल को यहाँ पे खराब हुए को यहाँ पे, तो आवाम यहाँ पे जलील हो रही है। पानी से रात दिन लोगों को दूर दूर जाकर पानी भर के ला रहे हैं, वहाँ से जो है ना पानी भर के ला रही है दूर दूर से जाके। इसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई इसका निजाम नहीं निकल रहा। पहले बताएं, आप इलेक्शन में वोट आप इस वक्त नून लीग को डालें, फिर आपका मसला हल हो, आप ये यकीन थे? डाले तो पहले हमने नून लीग को ही हुए हैं, सदियों से नून लीग को ही डाल रहे हैं, लेकिन उसका कहने का मकसद है जो टूबल हमें लगा के देगा, जो हमारे मसला हल करेगा, उसे वोट जो काम करेगा ना वोट उसको ही मिलेगा, हमें किसी के साथ। सर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, ये MP यहाँ आपका MNA नहीं आएगा तो आपका काम कैसे होगा? ये सवाल, असल सवाल तो ये है। बिलों में कमी नहीं होगी, टूबल नहीं लगेगा तो वोट जो करेगा काम ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। पाओगे तो MNA आएगा तो काम होएगा ना। ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ MP MNA ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 100ਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਟੀ 42 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। भाईजान अहले इलाका है, हम तो रैंडमली सर्वे करने आए थे इलेक्शन का, बड़े परेशान हैं और मियाँ साहब से मोहब्बत भी करते हैं, कहते हैं वोटर भी मियाँ साहब के हैं। पानी क्यों नहीं इनका मसला हल हो रहा? सर पानी का मसला ये है कि ये ट्यूबवेल तो ख़राब है, लेकिन दूसरे ट्यूबवेलों से जो इलाके में दूसरे ट्यूबवेल हैं उनके साथ इनको ज्वाइंट किया गया, ठीक है, कनेक्शन किए गए हैं, मेन कनेक्शन। थोड़ा बहुत पानी आता है, जाहिर सी बात है गर्मी है, हर इलाके का अपना अपना पानी का हिसाब। यानी ये गलत बयानी करे, पानी आ रहा है? नहीं पानी आता है, लेकिन सुबह 5-6 बजे पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता। वो तो ऐसे ही है ना फिर। अब तो ये नया ट्यूबवेल लगेगा। सर वो कह रहे हैं पानी हल्का फुल्का आता रहता है, इतनी बात नहीं कि पानी आ ही नहीं रहा, तो आप लोग नहीं जी, हल्का फुल्का के सुबह फजर के टाइम जो है ना दूसरे इलाके से पानी आ रहा है, हमारा दीने शाह की तरफ से पानी आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है मामूली पानी आ रहा है। मोटरें सड़ रही हैं हमारी, 20-25 हज़ार की मोटर है, शहजाद पंप लेके आ रहे हैं, वो ख़राब हो रहा है, चला रहे हैं सारा दिन, पानी दबा रहे हैं मोटर को, ऐसे पानी आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे गिरता चला जाता है, ऐसे चला के चला। तो मेरा ये कोई तरीका ही है? सुबह शाम का है, दोपहर तो आता ही नहीं है पानी। जनाब सर के अहले इलाका पे मोहब्बत करें। सर हम तो ऑपरेटर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये अफसर ही करेंगे। इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने अफसरों को पहुँचाएँ, जी। आला अफसरों को पहुँचाएँ, उनको क्या आपकी मेहरबानी है। जी। ये पाकिस्तानी हैं, इनका इसराइल से ताल्लुक़ नहीं है, ना भारत से इनका ताल्लुक़ बिल्कुल है, ऐसे ही है। और ये आपके टैक्स पेयर भी हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ भी हैं। जी। ठीक है, तो इनके पानी का मसला हल किया जाए। जी ज़रूर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू मैं इस वक्त चौक यतीम खाने से ज़रा आगे आके एक अंदर गली में मौजूद हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि 18 सितंबर को यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं मियां अज़हर साहब की वफ़ात के बाद, तो आपका वोट किसके लिए है? देखिए जी, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो दिल नहीं करता किसी को भी वोट देने का, क्या वजह है? क्योंकि ये कोई भी पार्टी है ना, वो आवाम के लिए तो आई नहीं हुई। वो अपने लिए अपना मुफाद सोचती है, अपने लिए काम करती है और चली जाती है। पैसा बनाओ, तहरीक चलाइए हर एक में। कोई भी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी पैसा कमाते हैं और निकल जाते हैं। ये वजह। और नहीं, लेकिन नून लीग तो ऐसे नहीं करती। नहीं, कोई पार्टी आप शोर नहीं कह सकते, शोर नहीं है, आप किसी के बारे में कह नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि ये नहीं कर सकते। हर पार्टी को हमने देखा है, ऐसा ही है सर। अब देखें जो नया इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, गरीबों की खिदमत जो हो रही है, सर्विस हो रही है। देखें पीरा का क्याम बहुत अच्छा है, काबिल स्तराइश है, अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे। लेकिन एक जगह ये कि हुकूमत को इतना सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जो है ना, जो रेडी वाला है या फेरी वाला है, उसका थोड़ा सा ना ख्याल करें। वो आपकी मेहरबानी है, आपकी जो फोर्सेज बनी हुई हैं वो सख्ती से काम ले रही हैं। एक रेडी वाला, उसे भी तंग कर रहे हैं। तंग क्या करना है, वो बेचारा काम करे क्या, उसके पास कोई हुनर नहीं है। मेरे पास हुनर नहीं है, मैं ग्रेजुएट हूँ, हुनर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, सिर्फ हुनर ना होने की वजह से मैं मार खा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मैं रेडी लगाऊँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे कम अज़ कम ऐसा तो हो कि मैं किसी इदारे से हुनर सीख लूँ, कोई अपना। तो आप ग्रेजुएट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मुलाजमत क्यों नहीं कहीं? मुलाजमत कहीं मिली नहीं है भाई। ये होगा, पैसा होगा, सिफारिश होगी तो सब कुछ आज के दौर में मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। पैसा हो, सिफारिश हो। नहीं, अब तो ऐसी हुकूमत आ गई जिसको पैसे की कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं, अब मुझे भी फिक्र नहीं ना रही, क्योंकि मैं एज मेरी ओवर हो गई है। मैं 52 ईयर्स हूँ। मैंने सिविल कॉलेज से FA किया हुआ है, FC कॉलेज से मैंने BA किया हुआ है जी। सर्टिफिकेट मौजूद है मेरे, ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, और मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हुनर नहीं है मेरे पास। अब कोई भी इदारा मुझे क्लेम ऑन नहीं कर रहा कि चले मैं हुनर सीख लूँ। धक्के खा रहा हूँ मैं, मेरी हुकूमतें पंजाब से। लेकिन इस वक्त तो पंजाब की माँ के होते हुए उनके बच्चे धक्के कैसे खा सकते हैं? धक्के खा रहे हैं ना। हमारी जो अम्मा जान है ना, हमारी जो अम्मा जान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो खुद तो नहीं आके देख रही ना। उनकी सर्वे टीम तो आज तक मैंने नहीं देखी कोई आगे पूछ रही हो भाई आपको कोई परेशानी है, क्या है, आप क्यों इतना धक्के खा रहे हैं। रेडी उठाओ, ये रेडी उठाओ, तहरीक उन्होंने चला दी है, बस वही उठाओ भाई। वहाँ जो खड़े हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं क्या? उसका सर्वे किया आपने? अरे कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हुनर ही दे दें, वो छोटा मोटा अपना ही कारोबार कर लें। जरूरत तो नहीं को सारी ज़िंदगी लिख के दिया कि मैंने रेडी लगानी है। हम शौक से लगाते हैं, मजबूरी है हमारे बच्चे हैं, बीवी है, घर का अखराजात हैं, किराए के मकान है, तो हम रेडी नहीं लगाए तो क्या लगाएं? अब इस तरह ये रेडी उठा रहे हैं, ये मेरे नज़दीक तो ये गलत है, ठीक है। या तो मेरे को प्रॉपर जगह दे दें, ठीक है, वहाँ भी हम काम कर लेते हैं। वरना सबसे बड़ी बात है, जितनी रेडी वाले ना, सबकी मैं बात करूँ, सबको हुनर देते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें किसी के इंस्टीट्यूट से हुनर जो है ना, कोई भी इलेक्ट्रिशियन का दे दें, ऑटोमोबाइल का दे दें, कंप्यूटर का दे दें, और मोबाइल रिपेयरिंग का दे दें, और एक कुछ तो दे दें। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। मैं ये नहीं करूँ मुझे अम्मा जान हमें कोई 50,000 रुपये दे, लाख दे दे, 10 लाख दे दे, मांग नहीं रहा हूँ, मैं हुनर मांग रहा हूँ। हम डेड बॉडी हैं, एक्सपायर हो गए हैं। जब वोट देने की बारी आती तो हम लाइव हैं, हमसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। अब वोट तो कास्ट कर सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं ले सकते, हुनर नहीं ले सकते। भाई ये क्या डिप्लोमेसी, क्या ये दोगलापन है? भाई हमारा वोट अगर हैसियत रखते तो हम भी हैसियत रखते हैं। सही बात है। आपके क्या है, बुजुर्ग सिटीजन है, आपके सीनियर सिटीजन है, यही कुछ नहीं। हमें खुदा के लिए आपकी मेहरबानी है, मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, हमें भीख ना दें, कुछ ना दें, हमें हुनर दे दें। और यही बात मैं एक और हवाले से बात करना चाहता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, वहाँ पे करोड़ों रुपये, अरबों रुपये आपने लगाए हुए हैं। क्या आपने कभी सर्वे किया है कि वो उनकी जिन ख़वातीन को आप दे रहे हैं वो ये पैसा लगा कहाँ रही हैं? तो अब उन्हें ये पैसा ना दें, हुनर दे दें, वो अपने हुनर से आगे इसकी कमाई करें। ये पैसा भी आपका बच जाएगा और वो आगे भीख मांगने से महफूज हो जाएंगे। पर मैं तो आप भिखारी नहीं बनना चाहते? मैं भिखारी कभी नहीं बनना चाहता, मैं हुनरमंद बनना चाहता हूँ, हुनरमंद। क्या ऐसा कोई इदारा है जो ओल्ड सिटीजन को सिखाए? और भाई मेरे बाहर सड़कों पे कई लोग सोते हैं, क्या उनका कभी आपने पूछे कि वो क्यों सोते हैं? भाई
उन्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आज तक कभी कोई टीम आई है? नहीं। रेडी उठाने के लिए इन्होंने पेरा फोर्ट बना दिया। एलडीए थोड़ी थी, एलडीए क्यों था? एलडीए नाकाम हो गई। एलडीए पे अरबों खरबों रुपए आप लगा के बैठे हुए हैं, तो वो टीम कहाँ गई? फिर नई फोर्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? पहले आप मुझे बताओ। जब एलडीए है ना तो फिर पीरा की ज़रूरत क्या पड़ेगी? चले बना लिया, अप्रिशिएट करते हैं, ठीक। कॉरपोरेशन का दफ्तर यानी कॉरपोरेशन का, लेकिन ज़रूरत क्या थी? इन्हें भी तनख्वाही तो देनी है ना। तो भाई जो मर्जी बना लें आप, तो जब तक गरीब को ख़त्म नहीं ना करेंगे आप, गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, रेडी ख़त्म नहीं होगी। तो गुर्बत उन्होंने ख़त्म कर दी है। हाँ, तो वो गरीब को ख़त्म करके कर रहे हैं ना। जब आपके पंजाब से सारी रेडी उठा लेंगे तो गरीब मर जाएगा, तो गुर्बत ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। वो गुर्बत ऐसे थोड़ी ख़त्म होगी। उससे चांसेस दें काम के, उन्हें हुनर दें, स्किल्स दें, ताकि वो आगे अपना इज्जत के साथ रोज़गार करें। ये थोड़ा ही है कभी वहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, तो पूछना है नहीं बेचारा काम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजूहत हैं, इसके पीछे मजबूरी क्या है? भाई उठा लो, तोड़ दो। ये पीछे रेडियो का कब्रिस्तान बनाया हुआ उन्होंने, मॉडल सिटी है ना, ये सिटी बस अड्डा, पीछे कब्रिस्तान क्या था रेडियो का। अभी आप जाके भी देखें, 20 आगे इन लोगों की रेडी हैं, गरीबों की, और टोटल इनकी विरासत ही यही थी, टोटल इनका सरमाया यही था, तोड़ के बैठ गए हैं। तो जिनकी रेडियाँ टूट जाती हैं वो फिर बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को कैसे खाना खाते? भीख मांग के वो गुजारा करते हैं बेचारे। सर सीएम के होते हुए तो कोई भीख नहीं मांग सकता ना। तो मांग नहीं सकता, तो वो मजबूर कर रहे हैं ना। अच्छा चले, सीएम के होते देखने को मांग सकता, तो फिर जराइम बढ़ जाएंगे। जब उनके पास रोज़गार नहीं है ही नहीं, जब उनके बच्चे भूखे रो रहे होंगे, कितनी देर बंदा बर्दाश्त करेगा? आप अपने खुद ज़रा अपने अंदर जायज़ा लेके देखें, आपका ये जॉब नहीं है, आपके बच्चे भूख से रो रहे हैं, पैसा आपके पल्ले नहीं है, कुछ भी नहीं है, भीख आप मांगना नहीं चाहते हैं, भीख नहीं मांगना चाहते, कैसे अखराजात पूरे करें? अपनी आप ज़रा झांक के देखें कि मैं किस तरह पूरा करूँगा। जिसके पास है ही कुछ नहीं, ना हुनर है ना कुछ है, वो क्या करेगा? वो जराइम पेशा अफराद के साथ एफिलिएट होगा, वो एफिलिएशन करेगा जराइम पेशा अफराद के साथ, फिर वो मजबूर हो जाएगा। एफसी कॉलेज से ग्रेजुएट करने वाला आज रेडी भी नहीं रख सका अपने। नहीं भाई, कभी आप पूछा ही नहीं किसी ने भाई, कभी आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ जाहिल हैं, कभी नहीं पूछा। हाँ जी, ये है भाई, जब कोई पूछेगा बताएंगे तो कितने वो मर्दमशुमारियाँ हुई हैं, आज आपके घर के अफराद कितने हैं बता दिए। भाई आपको ये पूछो कि आपके जो सर्वर पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वो रोज़गार क्या करता है, उसकी मजबूरी क्या है, कि उसकी सैलरी कितनी है, कि आपके वो खर्च आप पूरे कर पा रहे हैं, फिर वो उसके लिए काम करिए। ये क्या बच्चे कितने हैं, तो ये घर का खराज कितने हैं, वो भाई पूछिए कि घर के खराज कहाँ से पूरे कर रहा हो, मजबूर है बेचारा। भाई मेरी आखिरी बात यही है हुकूमत पंजाब से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि खुदा के लिए जो सीनियर सिटीज़न है ना, जिस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं, जो रेडी वाले थे, वो रेडी नहीं लगाएंगे, ख़त्म कर दी रेडी, उन्हें हुनर दे दें, स्किल दे दें, उन्हें ऐसा काम दे जो वो आसानी के साथ रोज़गार अपना पैदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये आपने भट्टी साहब की राय सुनी है, तो नहीं चाचे का क्यों होगा सॉफ्टवेयर, इन्होंने ऐसी बात क्या की है? एक बंदा अगर लाखों लोगों के जज्बात उन्होंने गलत क्या की? उन्होंने कहा अम्मा जान लफ्ज यूज किया। वैसे आप छोटे भाई हो, ये टिकटॉक बना लें, मुझे उस पर देख लें, वो ठीक है, बेहूदा और गंदी जुगते मार लें, वो ठीक है। एक मैं बात करूँ, आप छोटे भाई हो, मैं समझा रहा हूँ आपको, वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा? तो भाजी हाँ जी हो रहा है कि एक बंदे ने बारिश की गल की, वो चाचा ने ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ सेकंड ਉਹਨੇ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए सी। जहालत बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। इतने अच्छे अंदाज में चाचू ने बात की कि अम्मा जान लफ्ज़ यूज़ किया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, जुगता मार लो, टिकटॉक तो मुजरे देख लो। प्रोड्यूसर साहब चलाना ही, आप हर चीज़ जो फजूल है वो चला लें, वो सही है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने हक़ की बात करे, अगर कोई शख्स हुकूमत को कोई पॉजिटिव मैसेज दे, उनसे लाखों करोड़ों लोगों को रिलीफ लेने की बात करे कि इस तरह आप हुनर की तरफ लाएं, जो लोग बेरोज़गार हैं, बिलखुसूस जो रेहड़ी बान है,
जो बेचारा मेहनत कश है, अगर वो जॉब नहीं ले पा रहा या वो रेडी नहीं लगा पा रहा, भाई आप उसे टेक्निकल एजुकेशन दे दें। दिस इज़ वेरी वैलिड पॉइंट दैट चाचू हैज़ रेस्ड, बट द थिंग इज़ दिस कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। पता नहीं किस सोसाइटी में हम लोग चले गए हैं, डार्क एजिस में चले गए हैं यार। वो कहते थे पत्थर के दौर में भेज देंगे, इस तरह नहीं होता ना। अल्लाह का शुक्र है मेरे प्रोग्राम से कभी किसी को कोई गाली गई है ना, हम अब्यूसिव कंटेंट को प्रमोट करते हैं, ये मेरे चैनल की पॉलिसी नहीं है। चाचे ने बात की, बात ख़त्म हो गई। वो के प्रोग्राम जो था वो इलेक्शन पे था कि 18 सितंबर को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आम आदमी किसको वोट देगा, उस पर इंशाल्लाह मैं 2-3 प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि कोई एक प्रोग्राम पूरे हल्के की सूरत हाल आपके सामने नहीं ला सकता। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने